Good morning to all. Today we are going to start our fifth chapter. That name is The Mask. Okay, that is written by Satyajit Ray. The author of this story is Satyajit Ray. First of all, I would like to tell you about Satyajit Ray. Two or three lines. Satyajit Ray was a master storyteller, and he was the director also of Bengali films. Okay, he created two of the most famous characters in Bengali fictions. In this story, there is two most important characters, that is Feluda, and Feluda is the investigator in this story, and Professor Shonku, okay, the scientist. His stories are simple and entertaining. Satyajit Ray's stories are very simple and also entertaining. Okay, students. So in this story, we are going to enjoy uh, many things. We are going to be entertained. Okay, students. So we will start. Okay, let's start. First, I will tell you the characters of this story. The most important character of this story is Feluda. Feluda is nickname. Actually, the real name of Feluda is Pradosh Chandra. Okay, and the second character is Topshe. Topshe is Feluda's cousin. Okay, and the third character is Rajan Babu, and the fourth character is Tinkori Babu. And there are many names in this story that we will read in the during the explanation of the story. Okay, so students, the story's name is The Mask. uh, what type of mask? The mask that a person wear to hide his identity, to hide his face. Okay, हम अपने फेस को हाइड करने के लिए अगर अपने फेस पर कोई आर्टिफिशियल मास्क यूज़ करें जिसमें हमारे सिर्फ आईज दिखते हो, तो हम अपने पूरे फेस को कवर करके किसी को भी अपने फेस हाइड कर सकते हैं किसी से भी. ओके, उसी टाइप का मास्क के बारे में बताया गया है. सो ये स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. ओके, लिसन टू मी केयरफुली. ओके, सो फेलुदा और प्रदोष चंद्रा Mitar is an amateur sleuth who is a character in a series of Bengali detective fiction novels and short stories which were written by Satyajit Ray. He makes his first appearance in this story. Topshe is Feluda's cousin and the narrator of the story. Topshe is the narrator of the story. Narrator means जो story बताता है. Okay, he accompanies Feluda on all his adventures. Feluda and Topshe are on a holiday in Darjeeling when this incident occurs. Feluda and Topshe जो हैं वो हॉलीडे पर गए हुए हैं दार्जिलिंग. ओके, दार्जिलिंग में उनको जहाँ पर ये इंसिडेंट होता है, जो ये स्टोरी है, आपका टाइटल है द मास्क. इसी के बारे में जो भी इंसिडेंट होता है वो दार्जिलिंग में ही होता है. ओके, so I am starting with the first paragraph. I had accidentally overheard a disturbing conversation between Rajan Babu and a friend of his when I was sitting in the mall, and had reported to Feluda that there seemed to be something to investigate. मीन तोपशी सेइंग हियर कि उन्होंने वो दार्जिलिंग में राजन बाबू हैं जिनसे वो मिलने के लिए गए हुए थे. ठीक है, वो राजन बाबू से मिलते हैं तो उनके साथ एक और पर्सन था राजन बाबू के साथ. तो वो जो तोपशे हैं फेलुदास कज़न, तो वो फेलुदा को बताते हैं कि मुझे कुछ स्ट्रेंज सा लगा कि राजन बाबू अपने फ्रेंड से कुछ बातें कर रहे थे. देयर इज सीम टू बी समथिंग टू इन्वेस्टिगेट. मुझे ऐसा लगा कि कुछ इन्वेस्टिगेट वहाँ पर उनकी बातों से मुझे ऐसा लगा कि हमें कुछ इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, कुछ ऐसा है. देन सेकंड पैराग्राफ. राजन बाबू एन amiable old man. Amiable means here friendly, very friendly. Okay, and good natured. राजन बाबू वो काफ़ी फ्रेंडली थे, काफ़ी अच्छे नेचर के पर्सन हैं, and living a peaceful retired life in Darjeeling. Recently he had taken in a paying guest Tinkori Babu.
उनके उनके साथ ही उन्होंने एक अभी पेइंग गेस्ट रखा है हुज नेम इज तिकोरी बाबू। राजन बाबू के पेइंग गेस्ट है तिकोरी बाबू। ओके, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अ डियर फ्रेंड, तिकोरी बाबू हैड a special weakness for cheroot। तिकोरी बाबू को cheroot मीन्स हियर सिगार पीने की आदत है, उनकी वीकनेस है। एंड बिफोर मूविंग इनटू राजन बाबू's हाउस ही हैड मेड श्योर दैट राजन बाबू हैड नो ऑब्जेक्शन टू इट। उन्होंने उनके घर राजन बाबू का पेइंग गेस्ट बनने से पहले उन्होंने राजन बाबू से परमिशन ली थी कि ताकि उनको कोई उस चीज़ से कोई ऑब्जेक्शन ना हो, उनके सिगार पीने से उनको कोई ऑब्जेक्शन ना हो। देन आई एम मूविंग टू थर्ड पैराग्राफ। A few days ago, Rajan Babu had received a threatening letter by post. It had words not written but cut out from newspapers and books. Be prepared to pay for your sins, is all that is said. A few days ago, क्या हुआ था कि राजन बाबू को कुछ ही दिनों पहले राजन बाबू ने एक लेटर रिसीव किया था जिसमें कुछ लिखा हुआ था और उसमें कुछ हैंड राइटिंग यानी कुछ भी हाथ से नहीं लिखा हुआ था, बल्कि उसमें कुछ न्यूज़पेपर्स के कटिंग राइटिंग पेपर्स थे जो उसमें पेस्ट किए हुए थे। और उसमें क्या लिखा हुआ था, उसकी हेडलाइंस थी बी प्रिपेयर टू पे फॉर योर सिंस, मीन अपने गुनाहों का पश्चाताप करने के लिए रेडी हो जाइए। इज ऑल दैट इज सेड, उस जो उनको लेटर मिला था उसमें ये लिखा था बी प्रिपेयर टू पे फॉर योर sins. Okay. When we visited Rajan Babu to inquire about it, Feluda asked, "Have you a reason to suspect anyone?" जब अब Feluda and his cousin Topshe, when they moved to Rajan Babu's house to inquire about it, they asked Rajan Babu, is there any reason to मतलब he has any reason to suspect anyone? क्या उनको किस पर suspect means शक है? एब्सोल्युटली नॉट, आई डोंट रिमेंबर हार्मिंग एनीवन एनी टाइम। वो मना कर देते राजन बाबू कि उन्होंने कभी भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं किसी पर शक नहीं कर सकता। डज एनीवन विजिट यू रेगुलरली? अब वो उनसे पूछते हैं कि क्या कोई आपके घर रेगुलरली आता है, क्या आप किसी से रेगुलरली मिलते हैं? वेल, आई डोंट गेट टू मैनी विजिटर्स। डॉक्टर फोनी मित्रा कम्स ओकेजनली ओनली व्हेन आई एम इल। वो उनको बताते हैं कि मैं ज़्यादा किसी से नहीं मिलता, सिर्फ डॉक्टर फोनी मित्र आते हैं जो जब मैं बीमार होता हूँ तभी आते हैं, ओकेजनली, कभी कभी। आफ्टर सम इन्वेस्टिगेशन फेलुदा सेड टू मी डॉक्टर फोनी मित्रा कुड बी द वन हु सेंट द लेटर। ओके, कुछ इन्वेस्टिगेशन के बाद फेलुदा उनको सस्पेक्ट करने लगता है कि डॉक्टर फोनी मित्रा हो सकता है कि वो उन्होंने उनको लेटर भेजा हो। ही सीम्स टू बी इन नीड ऑफ मनी एज ही डजंट हैव अ गुड प्रैक्टिस। अ लेटर लाइक दिस वुड मेक राजन बाबू अफ्रेड एंड मेक हिम इल, एंड इफ दैट हैपेंड ही वुड नेचुरली गो टू हिज डॉक्टर। वो उनको सस्पेक्ट करते हैं डॉक्टर फोनी मित्रा को कि अगर क्या पता उन्होंने ये लेटर उन्होंने भेजा हो डॉक्टर फोनी मित्रा ने, क्योंकि क्या पता उनको पैसों की ज़रूरत हो और वो काफ़ी प्रैक्टिस में नहीं है, उनके पास ज़्यादा पेशेंट नहीं आते हैं। तो इससे क्या पता उनको लगा हो कि अगर मैं उनको ऐसे डराऊंगा तो वो बीमार होंगे और वो मेरे पास आएंगे और जिससे उनको उनकी पैसे की ज़रूरत पूरी होगी। नाउ in ninth paragraph, the second person who visited Rajan Babu often was Mr. घोषाल। सेकंड पर्सन है मिस्टर घोषाल जो कि राजन बाबू के घर पर आते थे। एन एक्सपर्ट इन एंटिक्स मीन्स ओल्ड एंड वेरी वैल्यूबल थिंग्स, जिनको काफ़ी लगाव था, जो एक्सपर्ट थे पुरानी चीज़ों में काफ़ी इन्वॉल्व थे। Of late, Rajan Babu had developed an interest in antiques and curious and collected many masks, daggers and all paintings. राजन बाबू को भी, जो कि मिस्टर घोषाल के फ्रेंड थे, राजन बाबू को भी पुरानी चीज़ों में इंटरेस्ट आने लगा था और वो भी उस चीज़ में काफ़ी इन्वॉल्व हो गए थे। नाउ पैराग्राफ 10, टिंकोरी बाबू थॉट घोषाल वॉज अ क्रूक। क्रूक मीन्स हियर अ डिसऑनेस्ट पर्सन, अ चीटर। तिंकोरी बाबू सेड दैट घोषाल इज़ अ चीटर, आई डोंट ट्रस्ट हिम, मैं उन पर ट्रस्ट नहीं करता।
He pretends to be interested in art and antiques, but I think what he really wants is to buy them cheap here and sell them to foreigners at a much higher rate. Tinkori Babu had told Feluda when we met him in the coffee shop the next day. तब तिंकोरी बाबू उनको बताते हैं कि जो मिस्टर घोषाल है वो एक चीटर हैं और वो ये चाहते हैं कि वो ये सब पुरानी चीज़ें थोड़ा सस्ते में ख़रीद करके उसको फॉरेनर को अच्छे रेट पर सेल कर दे। ये तिंकोरी बाबू फेलुदा को बताते हैं। तो सेकंड जो सस्पेक्ट था उनका वो था मिस्टर घोषाल। ओके, देन ही माइट हैव अ मोटिव इन सेंडिंग द लेटर टू राजन बाबू। तो हो सकता है कि मिस्टर घोषाल ने ये लेटर मिस्टर घोषाल ने भेजा हो राजन बाबू को। सेड फेलुदा आई लर्न ड्यूरिंग माई विजिट to the curio shop today that the shop is going to get some fresh supplies this evening. Then Rajan Babu said Feluda कि राजन बाबू फेलुदा से बोलते हैं कि मैंने देखा है कि आज कुछ फ्रेश सप्लाईज मतलब कुछ फ्रेश चीज़ें थी जो सप्लाई होने जा रही थी आज शाम, जो उन्होंने मिस्टर घोषाल के यहाँ देखा। I see exclaimed Tinkori Babu. A letter like that would naturally frighten Rajan Babu into staying at home for a few days and Ghoshal would get to buy all the new pieces. Then Tinkori Babu exclaim करते हैं, चिल्लाते हैं कि मुझे समझ में आ रहा है कि घोषाल बाबू क्या चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि जो राजन बाबू हैं वो थोड़े दिन घर पर बैठ जाएं ताकि मिस्टर घोषाल जो है वो सारे न्यू पीसेस परचेस करके उसको सेल कर सके। एग्जैक्टली राजन बाबू सेड एग्जैक्टली आवर नेक्स्ट सस्पेक्ट वाज राजन बाबू's सन प्रबीर मजूमदार। देन देयर थर्ड सस्पेक्टर वाज राजन बाबू's who was away to राजन बाबू से जो कि उनका जो थर्ड सस्पेक्ट जिस पर था, उनका थर्ड सस्पिशन जिस पर था वो था प्रबीर मजूमदार, जो कि राजन बाबू का बेटा था और वो काफ़ी टाइम से उनसे दूर था। राजन बाबू इट सीम्स had asked Prabir to leave the house when he was caught stealing money from his father's cupboard. Father and son had not been in contact since. एक्चुअली क्या है, राजन बाबू के बेटा जो था, एक बार उन्होंने राजन बाबू ने अपने बेटे को कुछ पैसे चुराते हुए उनकी कबर्ड से देख लिया था, तब उन्होंने अपने बेटे को तभी से वो अपने बेटे से दूर हैं। Feluda's investigation had revealed that Prabir had recently arrived in Darjeeling. फेलुदा की इस इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग जो प्रबीर है उनका बेटा है वो अब दार्जिलिंग में आ चुका है। दिस न्यूज़ शॉक्ड टिंकोरी बाबू ये न्यूज़ टिंकोरी बाबू को शॉक कर देती है। राजन बाबू डजंट नो दैट हिज सन इज इन टाउन। राजन बाबू को ये बात नहीं पता होती है अभी, सेड टिंकोरी बाबू, एंड आई डोंट थिंक ही शुड बी टोल्ड। आफ्टर ऑल ही इज ऑलरेडी हैड वन शॉक एंड। तिंकोरी बाबू बोलते हैं कि ये बात राजन बाबू को नहीं पता होनी चाहिए कि उनका बेटा भी दार्जिलिंग में पहुंच चुका है, क्योंकि उनको पहले से ही एक प्रॉब्लम है। नाउ इट्स 17 पैराग्राफ। सो प्रबीर हैज़ अ मोटिव टू थ्रेटन हिज फादर, इंटरप्टेड फेलुदा। देन फेलुदा बोलता है कि हो सकता है प्रबीर ने ये काम किया हो, धमकी देने का। नाउ द केस हैड रीच्ड द स्टेज वेयर इट हैड 3 सस्पेक्ट्स but no culprit yet. Now there are 3 suspects but they don't know about the real culprit. उनको real culprit के बारे में नहीं पता अभी तक, सिर्फ उनको डाउट है। Then something very frightening happened. Then one day very frightening happened. Frightening means डरावना होता है कुछ। क्या होता है? One morning we received a message that Rajan Babu wanted to see us urgently and we rushed to his house. One morning उनको मैसेज मिलता है कि राजन बाबू ने उनको अर्जेंटली उनके घर पर बुलाया है उन सबको। We found him lying down. Then when they reached to his house, when they reached to Rajan's house, they saw that he is lying down on his bed, looking pale and haggard. Haggard means unusually white and tried due to worry and lack of sleep. ऐसा मतलब कि
उन्होंने देखा कि जो राजन बाबू हैं वो लेटे हुए हैं और उनका फेस काफ़ी पीला पड़ चुका है। मीन डर की वजह से कभी कभी ऐसा होता है ना, हम बहुत ही एकदम वाइट से हो जाते हैं। डॉक्टर मित्रा वॉज बाय हिज साइड एग्जामिनिंग हिम एंड तिकोरी बाबू वॉज फैनिंग हिम। डॉक्टर मित्रा उनके साइड बैठे हुए थे, उनको कोशिश कर रहे थे जानने की उनको क्या हुआ है। राजन बाबू स्पोक विथ सम डिफ़िकल्टी लास्ट नाइट आफ्टर मिडनाइट। राजन बाबू फिर बोलते हैं थोड़ा थोड़ा। लास्ट नाइट आफ्टर मिडनाइट, लास्ट नाइट जब आधी रात हो चुकी थी। आई वोक अप सडनली एंड देयर इज इट वॉज फेस मास्क्ड। और उन्होंने देखा कि लास्ट नाइट जब वो उठे बीच में तो उन्होंने देखा कि एक फेस था उनके सामने जो मास्क था। फेस, यस आई सा अ मास्क्ड फेस, मैंने एक मास्क्ड फेस देखा। इट बेंट ओवर मी, वो मेरे ऊपर झुका हुआ था। इट वॉज ऑरिबल, वो काफ़ी ऑरिबल डरावना था। राजन बाबू कंटिन्यूड, आई कांट टेल यू हाउ आई स्पेंड द नाइट। राजन बाबू बोलते हैं कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता कि मैंने ये रात कैसे गुजारी, वो काफ़ी डरे हुए थे। टेक इट ईजी सेड द डॉक्टर, यू नीड कंप्लीट रेस्ट। देन डॉक्टर सेड टू हिम टेक इट ईजी and you need complete rest. Dr. Mitra Feluda said suddenly, did you go out last night? Your jacket's got a streak of mud on it. Then फेलुदा जो थे वो डॉक्टर मित्रा की जैकेट पर एक मिट्टी का निशान देखते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि क्या आप लास्ट नाइट कहीं बाहर गए थे। Then 24th paragraph, yes I did to see a patient, replied Dr. Mitra. Then Dr. Mitra said that yes I went to see a patient. Okay students, next explanation will I will send you in the second video. Okay.